Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Gita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gita Gaura Hari Bol, हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। Once again, we welcome all the assembled devotees for our Friday morning weekly satsang and Srimad Bhagavatam class. So, पुनः एक बार सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में। So, I am not qualified to discharge this service, but somehow or other, for my own purification and the pleasure of senior Vaishnavas, I am trying to attempt this seva. हालांकि मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भक्तजन हैं आप सबकी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वयं की शुद्धि के लिए ये सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। I seek all the assembled Vaishnavas blessings so that I can able to speak only what Srila Prabhupada and his disciple spoke about this subject matter. तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ जिससे कि मैं इस विषय वस्तु पर जो भी श्री प्रभुपाद जी या उनके अनुयायियों से श्रवण किया है वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायासु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। Hare Krishna. We will read today's Canto 1, Chapter 13, entitled Dhritarashtra Quits Home, text number 43. यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगा विगमो इह इच्छया क्रीडितु स्यताम् तथैवेष्यच्छया नृणाम्। यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगा विगमो इह इच्छया क्रीडितु स्यताम् तथैव इच्छया नृणाम्। यदा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगा विगमो इह इच्छया क्रीडितु स्यताम् तथैवेष्यच्छया नृणाम्। यथा क्रीडोपस्कराणाम् इच्छया क्रीडितु स्यताम् तथैवेष्यच्छया नृणाम्। यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगो विगमो इह इच्छया क्रीडितु स्याताम् तथैव इच्छया नृणाम्। यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगा विगमो इह इच्छया क्रीडितु स्यताम् तथैव इच्छया नृणाम्। यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगा विगमो इह इच्छया क्रीडितु स्यताम् तथैवेष्यच्छया नृणाम्। यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगा विगमो इह इच्छया क्रीडितु स्याताम् तथैवेष्यच्छया नृणाम्। यदा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगा विगमो इह इच्छया क्रीडितु स्याताम् तथैवेष्यच्छया नृणाम्। यथा क्रीडोपस्कराणाम्
Samyoga Vigamaiha Ichaya Kiritu Syatam Tatei Sichaya Nirnam. Mataji. Yata Krido Paskaranam Samyoga Vigamaiha Ichaya Kiritum Svetam Tatai Vishya Nirnam. Synonyms: Yata, as much as. Krida Upaskaranam, playthings. Samyoga, union. Vigamav, this union. Iha, in this world. Ichaya, by the will of. Kiriditu, just to play a part. Syatam, takes place. Tata, so also. Eva, certainly. Isa, the Supreme Lord. Ichaya, by the will of. Nirnam, of the human beings. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: as a player sets up and disperses his playthings according to his own sweet will, so the supreme will of the Lord brings men together and separates them. Purport: we must know for certain that the particular position in which we are now set up is an arrangement of the supreme will in terms of our own acts in the past. The Supreme Lord is present as the localized Paramatma in the heart of every living being. As it is said in the Bhagavad Gita 13.23, and therefore He knows everything of our activities in every stage of our lives. He rewards the reactions of our actions by placing us in some particular place. A rich man gets his son born with a silver spoon in his mouth, but the child who came as the rich man's son deserved such a place, and therefore he is placed there by the will of the Lord. And at a particular moment, when the child has to be removed from that place, he is also carried by the will of the Supreme. Even if the child or the father does not wish to be separated from the happy relation, the same thing happens in the case of a poor man also. Neither rich man nor poor man has any control over such meetings or separations of living beings. The example of a player and his plaything should not be misunderstood. One may argue that since the Lord is bound to avoid the reactionary results of our own actions, the example of a player cannot be applied. But it is not so. We must always remember that the Lord is the supreme will and He is not bound by any law. Generally, the law of karma is that one is awarded the result of one's own actions, but in special cases, by the will of the Lord, such resultant actions are changed also. But this change can be affected by the will of the Lord only and no other. Therefore, the example of the player cited in this verse is quite appropriate. For the supreme will is absolutely free to do whatever he likes, and because he is all perfect, there is no mistake in any of his actions or reactions. These changes of resultant actions are especially rendered by the Lord when a pure devotee is involved. It is assured in the Bhagavad Gita 9.30 and 31 that the Lord saves a pure devotee who has surrendered unto Him without reservation from all sorts of reactions of sins. And there is no doubt about this. There are hundreds of examples of reactions changed by the Lord in the history of the world. If the Lord is able to change the reactions of one's past deeds, then certainly He is not Himself bound by any action or reaction of His own deeds.
is perfect and transcendental to all laws. Hare Krishna. हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य हिंदी में श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। तात्पर्य: हमें निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं वो हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 23 में बताया गया है। अतः वे हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा किस स्थान के योग्य था? अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है। भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद न करें, यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। जीवों के मिलने या बिछुड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उसके खिलौनों के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य है तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वो किसी नियम से बंधे नहीं है। सामान्यतया कर्म का नियम यह है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं, लेकिन यह बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। अतः इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र हैं और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अतः उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। भगवत गीता 9वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण हैं और सारे नियमों के परे होते हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, before discussing about today's text, I just request the devotees who are newly coming or those who are not memorized these slokas, please 1.2.4 we recited before reciting Bhagavatam, we have to recite this sloka. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Divyasam Tato Jaya Mudiraye. So meaning, before reciting this Srimad Bhagavatam, which is very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Narayana, unto Nara Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author of Srimad Bhagavatam. प्रभु करें कि जो आज प्रथम बार आ रहे हैं से आ रहे हैं, अभी हमने मंगलाचरण में एक श्लोक पढ़ा होगा, आपने ध्यान दिया होगा शुरुआत में ही श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय से 4थे श्लोक, जिसमें कि बताया गया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के पूर्व हमें कृपा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऐसे शास्त्र हैं, ये हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्यगण हैं, भगवान सरस्वती देवी व्यास जी की रचना की है, इन सब की कृपा की हम याचना करते हैं। नारायण ऋषि जो कि श्रीमद् भागवतम को खुद भी स्वयं भी उसका अनुमोदन कर रहे हैं वहाँ पर बद्रीनाथ धाम में, तो ऐसे इनकी कृपा लेकर के ही ऐसे हमको स्वयं बताया जा रहा है, शास्त्र में बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में ही, कि श्रीमद् भागवतम की सेवा करने के पहले हमको इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। So this sloka is Srimad Bhagavatam, 1st canto, 2nd chapter, text number 4. So please make a note and please memorize this sloka. तो प्रथम स्कंद के 2य अध्याय का 4था जो श्लोक है वो है, और इसका अनुवाद इस प्रकार से आता है कि विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार जो इसके रचयिता है श्री व्यासदेव को नमन करें, नमस्कार करें। So in the same canto 1 chapter 2 text number 17, Shunvadan Swakada Krishna Punya Sravana Kirtanaha Hridayantastohi Abhadrani Vidunoti Sukrasadam. इसी अध्याय में श्लोक आया है बहुत सुंदर रूप से, जहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पुण्य जो श्रवण कीर्तन है उनका आश्रय लेने से हमारे हृदय से सभी जो अनर्थ हैं वो दूर हो जाते हैं। So in the English translation, Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. ये कथाएं जब ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होती हैं, और प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण वो क्या करते हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की जो अनर्थ है उसको निकाल देते हैं, जिससे कि उनकी कथाओं को सुनने में उनकी रुचि उत्पन्न हो। So the next sloka 1 to 18, Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistaki. So the translation, by regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of services to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact.
और ये भी श्लोक हम सब पढ़ते हैं मंगलाचरण में, शुरुआत में, आरंभ में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के पहले, जहाँ पर ये बताया गया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित रूप से जो उपस्थित रहते हैं और शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, उनके हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं प्रायः, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो ये सारे अबद्ध नष्ट हो जाते हैं और भगवान की सेवा में रुचि आती है, अगर हम नित्य नियमित रूप से भगवान के भक्तों के संग में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीर्तन करें। So here in this word irrevocable fact, just from our materialistic estimate, we heard this word, the letter of credit and all, they will say irrevocable letter of credit. Suppose we are purchasing some material from foreign country or far places, to give them a surety, they will make like this amount. Once we receive the goods, this amount we will get it. Discharge from the bank. Yeah, discharge from the bank, that cannot be revoked. You cannot change that one. So here also is saying that by regular attendance in classes on the Bhagavatam and rendering of service to the pure devotees, the troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is prized with the transcendental songs, is established as an irrevocable fact. That means it cannot be possible. So anyone who attend the Bhagavatam class and rendering service to the pure devotees, the loving devotional service is guaranteed and it cannot be revocable. तो प्रभु बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है, ये निश्चित रूप से ये होगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर कोई नियमित रूप से भगवान के भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे तो उनके हृदय में भगवान के प्रति अटल भक्ति उत्पन्न होगी। ये बिल्कुल गारंटीड है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। So in Canto 1, Chapter 8, text numbers 21, this is the last sloka in our prayer. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and other cowherd men of Vrindavana, and the enlivener of the cows and the censers. जो आरंभ में हमने 3 श्लोक मंगलाचरण के पढ़े, हमने उसमें से तीसरा श्लोक ये है जो कि कुंती महाराज की प्रार्थना है। ये प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, और ये हम लोग भागवतम के अध्ययन के आरंभ में हम ये इसका उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बन करके आए हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कुंती महारानी हम सबको शिक्षा दे रही है कि भगवान को जब स्मरण करना हो तो भगवान के प्रिय भक्तों के साथ में स्मरण करना चाहिए, तब भगवान को ये बहुत प्रिय लगता है। केवल भगवान का स्मरण नहीं, भगवान के पूरे भक्त उनके साथ में जो उनके बहुत प्रिय हैं, नंद, यशोदा मैया और सारे ग्वाल बाल, ये भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो उनके साथ में भगवान को नमन करना भगवान बड़े पसंद होते हैं इससे। So what are all the 4 slokas we have discussed? Have you all noted down this one? तो क्या आप सबने 4 श्लोक को आज लिखा है? हमें 3 तो हम पढ़ते रहते हैं, एक श्लोक हमारे शुद्धि के लिए है, हमको स्मरण कराने के लिए है। तो 4 श्लोक सबने लिख लिए कि नहीं? Those who are not noted, किसी ने पेन निकाला नहीं? पेन पेपर मोबाइल में नोट नहीं किया आपने? कुछ लोगों ने किया है। even if you are not having any notebooks or pen, you can put in your mobile and please recite memorize these slokas. क्योंकि ये श्लोक को स्मरण करना बहुत आवश्यक है, उत्तम श्लोक है। भागवतम के अध्ययन के पहले हम लोग इसको पाठ करते हैं जिससे कि हम उस चेतना में आ सकें कि भागवतम का अध्ययन करने के, भागवतम के प्रवेश करने के लिए हमें ये उपयुक्त कृपा की आवश्यकता है वो हमें प्राप्त होती है। So I'm telling again 1 to 4 Srimad Bhagavatam, 1st canto, 2nd chapter, 4th text.
तो जो भक्त आज पहली बार आए हैं और जिनके माध्यम से आए हैं, मैं उनको विनती करूंगा कि बाद में उनको बताएं, वो शायद उनको भी ज्ञात नहीं होगा कि 1 2 4 क्या होता है। 1 2 का 4 ऐसा नहीं। तो ये 1 2 4 का मतलब फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 4। ये भागवतम में 3 ऐसे शब्द आएंगे, गीता में 2 शब्द आएंगे, 3 का 4 1 का 2 ऐसे करके। तो मतलब प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय चौथा श्लोक, ये पहला श्लोक हमें याद करना है। इनके माध्यम से आज पहली बार जो आए हैं वो भक्त उनको बाद में प्लीज बताइएगा। Yes, that is, you can call your friends and they can help you. And then first canto, second chapter, text number 17. और उसके बाद प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17। And then first canto, second chapter, text number 18. और प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 18। Then Srimad Bhagavatam, first canto, 8th chapter, text number 21. प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 21। Hare Krishna. So now the plan today we are going to discuss Dhritarashtra quits home. So Yudhishthira Maharaj is lamenting, and then like Yudhishthira Maharaj is a pure devotee of the Lord, and he is so much concerned about his uncle Dhritarashtra and Gantari, because they lost all their 100 sons in the battlefield. Even though Dhritarashtra did give lot of difficulties, and many times he is not giving justice, he closed his eyes, but still as a devotee of the Lord, Dhritarashtra considered him as a king, and he treated with royal opulences in the palace. But one day, by the instruction of Vidura wants to make Dhritarashtra has to liberate from this bondage of this material life. So he gave suitable instruction to him. Based on that, they left from the palace, and Yudhishthira Maharaj came to know, and then he is lamenting, where my blind aunt went and the old auntie, they went away, how they will survive, who will protect them? In this way, he is very much lamenting. तो आज के अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र के द्वारा गृह का त्याग। हम लोग हर एक दिन जब यहाँ पर आते हैं, हर शुक्रवार को हम लोग एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हुए अभी हम लोग प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। 13वें अध्याय का 43वां श्लोक पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर जो दृश्य इस समय चल रहा है कि धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के पश्चात जब उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, धृतराष्ट्र को महाराज युधिष्ठिर ने जो उनके साथ इतना अन्याय किया था, फिर भी उन्होंने वो इतने, देखिए उनका इतना सुंदर भाव है कि उनको अपने साथ राज्य में लेकर आए और उनको और गांधारी को दोनों की अपने माता पिता के सेवा कर रहे थे। लेकिन एक दिन विदुर वो जो तीर्थ यात्रा पर गए थे, वो समझ गए कि अभी भी धृतराष्ट्र जो है वो अब उनकी अवस्था हो चुकी है वानप्रस्थ की, लेकिन फिर भी वो घर में अभी भी आसक्त है, वो राज्य में आसक्त है वो। तो वो आकर के ऋषि तत्व के रूप में उन्होंने उनको बहुत गंभीर और बड़े कठोर वाक्यों के द्वारा उनके ग्रंथि को काटने के लिए बड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए, क्योंकि उनका हित चाहते थे, परम हित चाहते थे। और उनके वाक्य को सुन करके एक दिन बिना बताए रात्रि में ही राजमहल से धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों लापता हो गए। और महाराज युधिष्ठिर और सब लोग बड़े व्याकुल हैं कि कहाँ चले गए, हमारी सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, कहाँ चले गए हमको छोड़ करके। हाँ, तो ये दृश्य चल रहा है और उसी पर आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। So we all know that Narada Muni is a very exalted devotee of the Lord, always thinking and singing the glories of the Supreme Lord. Whenever the devotees feel frustrated or dejected, immediately Naradaji will present there and give nice instruction. In earlier case, when Vyasadeva compiled all the Vedas, everything he did, but still he is not getting satisfaction. Immediately Narada Muni came and instructed him to glorify the Lord directly by way of presenting the Srimad Bhagavatam.
तो उस समय जब महाराज श्री बड़े व्याकुल हैं और ढूंढ रहे हैं, संजय के पास में गए, संजय के उनको भी पता नहीं है, उनको छल लिया गया है, और तब वहाँ पर नारद मुनि वो प्रकट होते हैं। तो ये बता रहे कि नारद मुनि, हम देखते हैं कई बार श्रीमद् भागवतम में जब जब भगवान की लीला को आगे बढ़ानी होती है या भक्त लोग क्षोभ में होते हैं, तो वो प्रकट होकर के उनके क्षोभ को दूर करते हैं। जैसे कि व्यास जी जिन्होंने सभी शास्त्रों की रचना करने के पश्चात जब वो असंतुष्ट थे, तो उस समय भी नारद मुनि जो गुरु भी हैं वो प्रकट हुए और उनके संशय को दूर किया, उनकी इस वेदना को दूर किया। उसी प्रकार यहाँ पर पुनः उपस्थित हुए हैं जब महाराज ऋषि बड़े व्याकुल हैं और उनको उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए नारद जी श्लोक बोल रहे हैं। उसी श्लोक का ये भाग है जो आगे पढ़ रहे हैं। So we are reading today text number 43. Narad Muni is instructing from the text number 41. So previous 2 weeks we read 41 and 42. Today we are reading about text number 43. So we will just go back and just read the translation of text number 41 and 42. तो नारद जी 41वें श्लोक से बोलना शुरू आरंभ कर रहे हैं। तो हम लोग आज ये 41 श्लोक थोड़ा सा 41 का अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आज के श्लोक पर आएंगे। So text number 41 says Narada Uvacha Mahakanchana Sucho Rajan Yat Isvara Vasam Jagat Loka Sapalayasyeme Me Vahanti Balim Isituh Sa Samyunakti Bhutani Sayeva Vyugnati Cha. The translation is, Sri Narada said, O pious king, do not lament for anyone, for everyone is under the control of the Supreme Lord. Therefore, all living beings and their leaders carry on worship to be well protected. It is He only who brings them together and disperses them. This last line, today's log also, it is repeating Narji. It is the Supreme Lord only who brings them together and disperses them. तो नारद जी महाराज के शोक को देखते हुए उनको कह रहे हैं कि हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतः सारे जीव तथा उनके लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं। कौन? परमेश्वर भगवान। तथा उन्हें विलग करते हैं। तो ये जो आखिरी लाइन है, वे ही सबों को पास लाते हैं और उन्हें विलग करते हैं, ये आज के श्लोक में भी हमें श्रवण करने को मिल रहा है। So we are all have the tendency to lament for many things, many people, family, friends, and children's wife, father, mother. If we could not able to do something, whatever we wish, then we start lamenting. Oh, I could not do this one. I could not do that one. So here Narji is saying, do not lament for anyone. हम सब अपने जीवन में देखें तो हम लोग कई बार शोकाग्रस्त होते हैं। हम लोग कई चीज़ों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने स्वयं की जॉब के लिए या कुछ के लिए, मतलब अपने जीवन में देखते हैं कई प्रकार से हम शोकायुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि बिल्कुल शोकायुक्त मत होइए, क्योंकि कुछ भी आपके अधीन नहीं है। आप कर्ता नहीं है, आप नियंता नहीं है। So this does not mean that for others problems and issues we should be insensitive. We have to be sensitive, but there is no point of lamenting, because everyone is well protected by the Lord if they are worshipping the Supreme Lord. तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम बिल्कुल असंवेदनशील हो जाए। शोक नहीं करना है, लेकिन संवेदनशील तो रहना ही रहना है। वो भक्तों का गुण होता है, पर दुख दुखी। तो इसीलिए संवेदनशील रहना है, लेकिन ये जानते हुए कि सब कुछ के नियंता परम पुरुषोत्तम भगवान है। अपने आप को नियंता या कर्ता मान के शोकायुक्त नहीं होना। So in the text number 42, Narji is saying, Yata gavo nasi prota tantyam battasya damabhi vaktantyam namavir batta vahanti balim yisutu. Translation: as a cow bound through the nose by a long rope is conditioned, so also human beings are bound by different Vedic injunctions
and are conditioned to obey the orders of the Supreme. तो 12वें श्लोक में बोल रहे नारद जी, जिस प्रकार से बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेश का पालन करने के लिए बद्ध है. So, in this analysis, we can understand that everybody is bound by, in villages, most of us are having experience in the villages. The cow, when they put the nose, and then they will tie the rope, and then, as long as it is okay, and then they will bind with the places, so it grasses somewhere. If the cow wants to go more than that the rope, then it will get bleeded in his nose and it cannot do. Similarly, everyone is conditioned. We are put in a particular situation according to our own karma. If we try to overlook that situation, and then the struggle starts, and we are bound by the three modes of material nature. तो अगर आपको गांव में, जैसे यहाँ पर तो आप सभी को बहुत लोग को अनुभव होगा, गांव में हम देखते हैं किस प्रकार से गाय को, बैल को बांधा जाता है. रस्सी से जब बांधते हैं तो जहाँ से बांधा है आपने खूंटे से जितनी बड़ी रस्सी है उतने दूर तक गाय स्वतंत्र है. कहीं पर भी बैठ सकती है, कहीं पर भी घूम सकती है, लेकिन उससे दूर नहीं जा सकती. उसी प्रकार से मनुष्य भी जो है वो अपने कर्मों के जो फल है, जो उनका प्रारब्ध है, जो प्रकृति के तीन गुण जो है प्रकृति उसको नियंत्रित करती है, उसी के द्वारा बंधे हुए हैं. उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते. वो जितना उनका प्रारब्ध है उतना ही प्रकृति गुण उनको उतनी रस्सी दे रखी है, उतनी हमको सुख प्रसन्नता मिली हुई है, और उतने देर में ही हम भ्रमण कर सकते हैं. उसके बाहर कई बार देखते हैं हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत सोच में नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वही हमारी सीमा है. So Naradji is pacifying Yudhishthira Maharaj by giving right instructions. So here today is saying Yata Krido Upaskaranam Samyoga Vigama Viha Ichaya Kriditu Siyatam Tatai Vesyachaya Nirnam. Translation is, as a player sets up and disperses his playthings according to his own sweet will, so the supreme will of the Lord brings men together and separates them. Very wonderful analogy is giving. So we all used to play like chess or something like that in any play. We are setting, and then if you do not want to play, then we will take everything and put it in the box, and then we are going many places, any game, cricket or whatever thing. Like how a man wants to play, he will continue. If he wants to stop, then he will stop and then he will go. Similarly, the Lord brings men together and disperse them according to his own sweet will. यहाँ पर भगवान को जो है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि श्रीमद बता रहे नारद जी कि आप चिंता मत करिए, ये सब भगवान नियोजित कर रहे हैं. जिस प्रकार से एक खिलाड़ी होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खेलता है, बिगाड़ता है, उसी प्रकार भगवान ये नटवर है. ये अपनी स्वयं की माया से ये सब कुछ आयोजित करते हैं. वो स्वराट है, और उनकी परम इच्छा से ही मनुष्य जो है वो पास में आते हैं. कोई परिवार में आते हैं, फिर बाद में विलग हो जाते हैं. ये सब उनके निर्देश में और उनके दृष्टि में, उनके दृष्टिपात के द्वारा, अर्थात उनकी ही स्वीकृति के द्वारा ये सब होता है. तो वो सब कुछ ये भगवान जो है कठपुतली जैसे सबको नचा रहे हैं. So today we are having fortunate to assemble in the hall. We are discussing and associating with the devotees, and a month ago it is not possible because we do not have any program. Due to these conditions, it is not possible, and today we are having the opportunity. So that means when we are having the opportunity, we have to utilize it for 100%. If you do not have the opportunity,
then it is the arrangement of the Lord, then there is no point of lamenting. देखिए जैसे आप यहाँ पर आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रातः काल को शुक्रवार के दिन इतने लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये कार्यक्रम के बीच में नहीं हो रहे थे, अभी कुछ कार्यक्रम अभी शुरुआत हुए हैं, ये हमको अवसर दिया गया है भगवान की कृपा से। अब इस अवसर का लाभ उठाना नहीं उठाना ये हमारे ऊपर है। हो सकता है कि हम शुक्रवार के दिन यहाँ पर नहीं आए, घर में सोते रहे देर तक, छुट्टी का दिन है आज, वो भी अवसर हमारे पास में है। और सुबह सवेरे के भक्तों के संग में आकर के कथा का श्रवण करना, अपने जीवन के जो परम सिद्धि की अवस्था है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, ये भी अवसर हमारे पास में है। तो ये करें कि जब भी हमें भगवान अवसर दें तो उसका हमें 100% लाभ उठाना चाहिए। हाँ, वो लाभ उठाने की जो इच्छा है वो हमें प्रकट करनी चाहिए कि मैं करना चाहूँगा। अवसर भगवान देंगे, उसको लाभ उठाने की जो आकांक्षा है वो हमें प्रकट करनी होगी, इच्छा प्रकट करनी होगी। So Prabhupada written in the purport many times, in this material world, however you are endeavoring, whatever you are doing in these material activities, at the end it is only frustration. Whatever you do, maybe we have some ambition, I want to be like this personality in materially, right? But before aspiring that one, we should think whether that man is happy, whether he is well situated, whether, because we are aspiring to become that person, and before we are aspiring and we put our energy and other things, we have to check, right, whether he is okay, is all right, and what he is aspiring. So we have to think in that way, right? If you are thinking in that way, we'll come to know any material endeavors will at the end will give only frustration, nothing else. देखिए भौतिक जगत में ये बिल्कुल शास्त्र में प्रमाणित ये वाक्य है, और हम सब देख भी सकते हैं, अपने अनुभव से समझ भी सकते हैं कि भौतिक जगत में हमारे भोग वांछा की जो इच्छाएं हैं वो हर इच्छाएं हमको अंततः निराश करती हैं, अंततः वो निराशा की ओर हमें आगे बढ़ाती है। क्योंकि इसकी रचना भगवान ने इस प्रकार से की कि यहाँ पर पदम पदम विपदाम, हर एक हमारा प्रयास जो तथाकथित सुख के लिए होता है वो अंततः हमें दुख ही देता है। और जैसे हमारे मन में इच्छा है कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, बड़े स्टार हैं, हम ऐसा बनना चाहेंगे, लेकिन हम उनको जाकर के पूछें अगर, या उनको देखें, उनसे ये ज्ञात हो कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो और जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो इतना प्राप्त करके प्रसन्न है, बिल्कुल संतुष्ट हैं, तब ज्ञात हुआ कि इस संसार में शास्त्र बता रहे हैं कि जिनका भगवान से विच्छेद है, जो इस संबंध को विच्छेद कर रखा है, वो चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले वो संतुष्ट नहीं हो सकते, जैसे मछली जल के बिना संतुष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए, कि इस जानना चाहिए शास्त्रों के माध्यम से कि इस जगत में भौतिक सुख की सभी कामनाएं ये अंततः हमको निराशा की ओर उन्मुख करने वाली हैं। So the devotees, we are assembled here in this hall, then how much fortunate we are all. We understand this thing, that any amount of material advancement will not give peacefulness or success, but many people, the whole world is running, that they are thinking that makes a plan, different plans, 5-year plans, these plans, United Nations, so many things they are doing, but end of the day, it is not going to benefit them. But who is intelligent? So by the mercy of the Vaishnavas and our spiritual master, Srila Prabhupada, we came across his books, then we read, we understand, we concluded that any amount of material advancement will not give successful in our life. So, but this knowledge is not available with everyone. Even if you are going and teaching, they are not ready to take up. So that's the reason this month, the December month, we are freely distributing this
with the cost price we are distributing the Srila Prabhupada books to everyone. Maybe the person who received may not read, but somehow or other, their family members, friend, somebody will read. Somebody will read Srila Prabhupada, just one sloga, then their life will be completely transformed. तो हम सब जो यहाँ पर आज बैठे हैं इस हॉल में, तो ये हम समझ नहीं सकते कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको ये अवसर का लाभ उठाने का जो शक्ति प्राप्त हुई, हम सब यहाँ पर आए हैं प्रयास करके भगवान की विशेष अनुकंपा से। भूल कर है कि नहीं तो हम देख सकते हैं कि इस जगत में जितने लोग भी प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बना रहे, योजनाएं बना रहे हैं जीवन में सुख होने के लिए। कंपनी में बड़े बड़े प्लान बनते हैं, सैलरी बनती है, 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान, वो सब अंततः देखा जाए तो पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। क्योंकि जो संतुष्टि हमको यहाँ पर भगवान के भक्तों के संग में आकर के भगवान के नाम और रूप को लेना, जो कि आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा के संपर्क में आती है, जब तक उससे संपर्क नहीं होता है तो चाहे जितना प्रयास कर ले वो सब अंततः हमको निराश ही करता है। तो इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि ये हम सबको समझना चाहिए कि कितना भी जो हमको शांति की या सुख की अनुभूति होती है भक्तों के संग में, वो कितना भी हम भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर लें, उस प्रकार की शांति का अनुभव करें यहाँ पर। और सब लोग दौड़ रहे हैं शांति के लिए, ढूंढ रहे हैं, एक के बाद एक चीजें लेते जा रहे हैं कि अब मुझे शांति और सुख प्राप्त होगा। लेकिन भौतिक जगत में जब तक भगवान से हमारा संबंध स्थापित नहीं होता है, तब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती। So Prabhupada writes in his purport, we must know for certain that the particular position in which we are now set up is an arrangement of the Supreme Will in terms of our own acts in the past. The Supreme Lord is present as the localized Paramatma in the heart of every living being, as it is said in the Bhagavad Gita 13.23, and therefore He knows everything of our activities in every stage of our lives. So the Lord, Supreme Lord, knows our each and everything, in what is our thinking. He knows our heart completely. So that's what they say, even the blade of grass cannot move without the sanction of the Supreme Lord. So in the 13.3, it says, Ubatrasthanumantasya Patta Bhokta Maheshwaram Paramatmeti Chapi Yukto Dehesmin Purusa Para. So the Lord is the overseer and permitter. यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य का शुरुआत आरंभ करते हैं श्लोक पर। वो कहते हैं कि जहां पर भी हम स्थित हैं अभी, जिस अवस्था में हम समझ जाएं, ये अवस्था, ये पद, ये हमको अपने विगत कर्मों के परिणाम स्वरूप भगवान के निर्देश में उपदृष्टानुमंताच, उनकी स्वीकृति के बाद ही हमको ये अवस्था प्राप्त हुई है। क्योंकि भगवान ही वो सबको देखने वाले, सबका पालन करने वाले, सबके कर्मों के फल को निश्चित करने वाले, ये भगवान की दृष्टि में ही ये सब कुछ होता है। So Prabhupada continues, He rewards, means the Supreme Lord. He rewards the reactions of our actions by placing us in some particular place. A rich man gets his son born with a silver spoon in his mouth, but the child who came as the rich man's son deserved such a place, and therefore he is placed there by the will of the Lord. तो वही हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं भगवान। धनी मनुष्य की इच्छा संपन्नता के बीच जन्म लेता है का बच्चा, धनी मनुष्य का बच्चा, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, ये कौन निश्चित करता है? कि भगवान निश्चित करते हैं। भगवान की जो शक्ति है, प्रकृति है, वो करती है। अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। इसीलिए प्रभु बताया था पहले कि बिना भगवान की इच्छा की कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अर्थात जो भी अवस्था हम प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में, ये केवल हमें समझना चाहिए कि हमारे जो कर्मों के फल हैं, लेकिन इसको निश्चित करने वाले वो भगवान हैं और उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। So Prabhupada further writes,
And at a particular moment, when the child has to be removed from that place, he is also carried by the will of the Supreme, even if the child or the father does not wish to be separated from the happy relation. आगे कहते हैं कि देखिए, जैसे एक बच्चे को उसके घर से ले जाया जाए कहीं और, वो नहीं चाहता है, उसके बिना चाहते हुए भी, तो ये सब भी बता रहे हैं कि ये सारा अरेंजमेंट, सारी योजना भगवान बनाते हैं। किसी का मिलना बिछड़ना, एक ही परिवार में रहते हुए भी कभी मिलना कभी बिछड़ना, ये सब भगवान की दृष्टि में उनके परम इच्छा से ही होता है। If you want to stay also, if it is not the will of the Lord, we cannot stay. If you want to leave also, we cannot leave. We have to be there in that particular situation according to our actions and reactions. So it is the Lord can only, He can do that. We will, in the later part of the purport, we will discuss about that point. ये देखिए भगवान की परम इच्छा से हो रहा है, हम लोग की कर्मों के अनुसार। और ये हम लोग से अच्छा कौन समझेगा जो यहाँ पर आप सब बैठे हुए हैं, आपका परिवार भारत में है या नेपाल में है, आप यहाँ पर हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, साथ में होना चाहिए। लेकिन वो अलग हैं, आप अलग हैं, परिवार पत्नी अलग है, बच्चे अलग जगह पर रह रहे हैं, आप अलग जगह पर रह रहे हैं, में से भोजन लेना पड़ रहा है किसी और के हाथ से बनाया हुआ। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार भगवान की परम इच्छा से हो रहा है। So Prabhupada writes further, the same thing happens in the case of a poor man also. Neither rich man nor poor man has any control over such meetings or separations of living beings. The example of a player and his playthings should not be misunderstood. One may argue that since the Lord is bound to award the reactionary results of our own action, the example of a player cannot be applied. But it is not so. We must always remember that the Lord is the supreme will and He is not bound by any law. Generally, the law of karma is that one is awarded the result of one's own action, but in special cases, by the will of the Lord, such resultant actions are changed also. बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, बहुत गंभीर बात लिख रहे हैं कि कोई कह सकता है कि यहाँ पे जो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको भगवान फल दे रहे हैं, तो फिर खिलाड़ी वाली जो बात आपने बताई कि वो स्वयं की इच्छा से बिगाड़ता और बनाता है, ये यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी को कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, भगवान उस प्रकार के नियंता नहीं है कि जो केवल आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल दें। प्रकृति ऐसे करती है, लेकिन भगवान बात ही नहीं है, स्वराट है वो कभी कभी हमारे कर्माणि निर्वहति, वो पूरे कर्मों को शून्य भी कर सकते हैं, सभी कर्मों के। जैसे भगवान के शरण में कोई भक्त आते हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि उनके अनादिकाल के जितने भी कर्म हैं उनको मैं जला के भस्म कर देता हूं। सब वो भगवान की इच्छा है, स्व माया, भगवान की स्वयं की इच्छा है। वो भगवान क्योंकि स्वराट है, वो उनको किसी और को रिपोर्ट नहीं करना है कि आप ऐसा क्यों कर दिया, उनकी स्वयं की इच्छा है, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोले प्रभुपाद जी कि इसमें जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है खिलाड़ी का, वो कोई भ्रांति नहीं है, उसको भ्रांति नहीं समझना चाहिए। So Prabhupada writes further, but this change can be effected by the will of the Lord only and no other. This is very important. और ये परिवर्तन, क्योंकि कर्मों का फल उनको नहीं मिला या उनके कर्मों का ये फल मिला, ये केवल और केवल भगवान निश्चित करते हैं और कोई नहीं। So therefore, the example of the player cited in this verse is quite appropriate, for the supreme will is absolutely free to do whatever he likes, and because he is all perfect, there is no mistake in any of his actions or reactions. इसलिए श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं वो उसे करने के लिए परम स्वतंत्र है। और चूंकि ये भी समझना आवश्यक है, बहुत प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं कि चूंकि वो पूर्ण है, उससे कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती, वो संपूर्ण है, सदैव ज्ञान में अभिज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, इसीलिए वो जो कुछ भी करते हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। So the Lord has the power to remove our karmas. The Lord only is having, no other has. So Brahma, in the Brahma Samhita, Brahma prays that
कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि. So the Lord only can able to do, no other demigods can do this one. तो सभी के एक इंद्र गोप से लेकर के और इंद्र तक जो इस भौतिक जगत में देखिए ऐसे जीव हैं, सभी के कर्मों के अनुसार उनको फल मिलते हैं. लेकिन अगर कोई भक्ति भाव में युक्त होता है तो उनके कर्मों को भगवान जला करके बिल्कुल उसको भूज देते हैं. उनके कर्मों का कोई फल नहीं उनको प्राप्त होता, अर्थात वो भगवत धाम जाते हैं. ये केवल भगवान गोविंद कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि उनको ही ये अधिकार प्राप्त है. भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं. These changes of resultant actions are especially rendered by the Lord when a pure devotee is involved. It is assured in the Bhagavad Gita 9.30 and 31 that the Lord saves a pure devotee who has surrendered unto him without reservation from all sorts of reactions of sins. And there is no doubt about this. There are hundreds of examples of reactions changed by the Lord in the history of the world. If the Lord is able to change the reactions of one's past deeds, then certainly he is not himself bound by any action or reaction of his own deeds. He is perfect and transcendental to all laws. जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर के द्वारा किया जाता है. जैसा कि भगवद गीता में 9वें अध्याय के 30 और 31 बड़े महत्वपूर्ण श्लोक में बताया गया है, जहां पर कि जो भक्ति से कोई त्रुटि हो जाए तो फिर उनको साधु ही समझना चाहिए. और आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में, इसीलिए भगवान किसी के भी विगत कर्मों, विशेष रूप से भक्तों के विगत कर्मों के परिणाम को पूर्ण रूप से बदल देते हैं. उनके विगत रूप के जितने भी कर्म किए गए हैं उस सबको, उन कर्मों का जो फल प्राप्त करना होगा कई जगह लेने पड़ेंगे, और कोई भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो सबको समाप्त कर सकते हैं. भगवान को अधिकार प्राप्त है, भगवान ऐसा कर सकते हैं, केवल भगवान कर सकते हैं. और इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर में कि ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में ऐसे हैं. आप देखिए मृगारी, रत्नाकर, ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसे विगत ऐसे कारों में लगे थे कि जिसका बहुत दुष्परिणाम होने वाला था, लेकिन जैसे भगवान की शरण ली वो शुद्ध भक्त बन गए और भगवत धाम के अधिकारी हुए. इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण बताए गए हैं जहाँ पर भगवान के द्वारा कर्म फल बदल दिए गए हैं. So Prabhupada quoted this verse from Bhagavad Gita 9.30. Apichet sudharacharo bhajate mam ananyabhak sadhuryeva sa mantavyah samyuk vivasito hi sa. So meaning, even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. यहाँ पर कोट किया गया कि अगर दृढ़ता से भक्ति में लगे हुए हैं ऐसे साधु से अगर कोई कभी दुराचार दिखने में लग रहा है कि हो गया है तो भी उनको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि भगवान को साधु मानते हैं. भगवान के कर्म फलों को बदल देंगे, तो सभी दुष्परिणाम को बदल देंगे. So further in Krishna says, Shipram bhavati dharmatma sasvat chantim nigacchati kaunteya pradijanihi name bhakte pranashyati. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. कहते हैं कि अर्जुन सबको जाके घोषणा कर दो, बता दो कि मेरे भक्तों का कभी भी ह्रास नहीं होता. मेरे भक्त जो होते हैं उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, कभी उनका ह्रास नहीं हो सकता, कभी उनका नाश नहीं हो सकता. So time, actually I am very poor in time management. So when I heard lecture from Solnas Radhanath Swami Maharaj, he gave very wonderful points. Like Maharaj started the lecture with this, the sloga 3.27, Prakriti Kriyamanani Kunai Karmani Sarvasaha Ahankara Vimudatma Kartaham iti manyate. So the spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. समय की कमी होने के कारण हम लोग और विस्तार में नहीं जा सकते, जबकि मैंने श्रवण किया था परम पूज्य राधा स्वामी महाराज से. तो महाराज ने बताया कि श्लोक के ऊपर शुरुआत किया उन्होंने
भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से सब कुछ प्रकृति के नियंत्रण में होता है, और जो अहंकार विगुण आत्मा है वो सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, जबकि सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किया जा रहा है, जो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। So Maharaj very vividly explained about this Gajendra pastime also, how Gajendra is in a helpless situation. He approached Supreme Lord and get salvation. So, and Maharaj quoted also this how Prahlad Maharaj, he put, the Hiranyakashipu put him in different difficult situation. He protected. He cannot do anything. Even Hiranyakashipu, he defeated Indra, and Indra all ran away from him, all from his place. He that much powerful, but he cannot able to do any harm to his own child, just 7-year-old child, small child, because the Lord is protecting. And Prahlad Maharaj is saying, I am not worried about myself, because whatever situation I am in, I can able to be in Krishna consciousness. But I am worried about these materialistic people. They are endeavoring for so many things, and they are getting into the trap of this Maya. So, what is the important? Prahlad Maharaj is saying, anyone who always remember Krishna, then Maya cannot touch. Krishna Surya Sama, Maya hi Antakara, Yahan Krishna, Taha Maya re Adhikar. So wherever Krishna is there, Krishna is the light, Maya is the darkness. Wherever Krishna is there, light is there, there is no place for darkness. So very simple, maybe we think that even though we are reading, hearing all these things, most of our time, we are worried about some things or other. Why this is happening like this? Why this is not happening in other way? Problems in life. But simply we remember Krishna, then everything will go away. So this is Prahlad Maharaj is saying. Prahlad Maharaj is saying, I am not worried about at all anything, because I always remember you, Krishna. So this is the formula to get out from all these difficulties in our life. Just remember Krishna. How we can remember Krishna? By chanting His holy name and serving the Vaishnavas. These 2 points Maharaj mentioned. These 2 points is very, very essential. It helps us to go back home, back to Godhead. Chanting the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. By chanting this mantra attentively and serve the devotees, these 2 things will take us to back home, back to Godhead. Hare Krishna. तो फिर वहाँ पर गजेंद्र के बारे में बताया गया, प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया, उनकी जीवन में कितनी विपदाएं आई, किस प्रकार से, लेकिन उन्होंने अपने आप को कर्ता नहीं मान करके भगवान की शरण ली, और उनके देखिए किस प्रकार से रक्षा की गई। भगवान ने गजेंद्र का भी रक्षा किया हरि के रूप में आकर के, और नरसिंह भगवान के रूप में आकर के प्रहलाद महाराज की रक्षा, जबकि हिरण्यकश्यप इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र तक उनसे भयभीत थे। ये छोटा सा 5 वर्ष का बालक, उनको पूर्ण विश्वास था, वो कहते कि मुझे कोई भी तनिक भी संशय नहीं है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा जो चित्त है वो भगवान के अमृत रूपी कथा श्रवण करने में लगा हुआ है। लेकिन मैं उनके लिए सोच रहा हूँ, उनके लिए शोकित हूँ जो विमुख हैं भगवान से और इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, माया सुखाय, जो माया के सुख में अभी भी भ्रमण कर रहे हैं। उनके लिए मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, भगवत धाम नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको प्रचार करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए इन सभी के किस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, तो हमने समझ किया कि भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है वो, और वो कोई हमारे कर्मों के जो कर्मफल है उसके लिए बाध्य नहीं है। भगवान कर्म की शरणागत जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं पूर्ण रक्षा करता हूँ, उनके अगर दुष्कर्म भी हैं, परिणाम है, वो सबको मैं नष्ट कर देता हूँ। बताइए इतना अच्छा ये प्रपोजल और कौन दे सकता है। भगवान श्री गीता में भी बोलते हैं आखिरी में, इसीलिए सब कुछ को छोड़ करके आप मेरी शरण में आओ, आपके जितने भी पाप पूर्वक जो कर्म हो चुके हैं पहले भी सबको, वो सबको मैं नष्ट कर दूंगा और आपकी पूर्ण रक्षा करूंगा।
Just only one sloka, please note down and read when you are having free time at your home or respective places. Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 20, pure devotional service surpasses knowledge and detachment. Text number 27 and 28. It says, Jata Sradho Mat Katasu Nirvinna Sarva Karmasu Veda दुक्खात्मकं कामान परित्यगे अभिअनीश्वरा ततो भजते माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जस्मनाश्च तां कामान दुक्खदोर कंस दर्घयान. Translation is that having awakened faith in the narrations of my glories, Krishna is saying to Uddhava, having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratifications leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. Most of the sadhaka devotees, we face this phase of life. So we understand the Krishna consciousness is the ultimate truth, but while doing our sadhaka, still we are having the tendency to enjoy the sense gratification. So Lord is saying that continue, don't get morose. Prabhupada writes in the purport, don't get morose. If you become morose, but you have to repent, but don't get morose and dejected. If you are doing that one, then you drift away from the devotional service. Instead, you keep on doing the sadhanas continuously. Definitely you can overcome this struggle. Hare Krishna. तो बहुत सुंदर श्लोक है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में 27 और 28 उद्धव गीता का भाग है ये, जहाँ पर भगवान बता रहे हैं बहुत सुंदर रूप से, जहाँ पर कोट किया जा रहा है कि अगर देखिए सभी साधक भक्त जो है, जो ये जानते हुए कि सभी इंद्रिय भोग के जो मार्ग हैं, भोग ऐश्वर्य सत्ता नाम हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाएगी, वो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनसे इंद्रिय तृप्ति या भोग की जो इच्छा है उसमें वो नियंत्रण नहीं कर पाते, तो वहां पर बताया गया कि तब भी उनको उत्साहपूर्वक भक्ति में बने रहना चाहिए। और कभी ऐसी जो आपातकालीन स्थिति आ जाए, कभी दुर्घटना हो भी जाए, तो उसको पश्चाताप करना चाहिए कि ये तो हमारे जो भक्तिमय जीवन है उसमें बहुत बड़ी बाधा है, और गंभीरता से अगर उस पर वो शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं और उत्साहपूर्वक हृदय वाक कपूर से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि क्रमशः जो अभी हमने पहले भी श्लोक पढ़ा भगवद गीता से 30 और 31, उनका कभी नाश नहीं होता और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान क्योंकि उनके हृदय में विराजमान है, इसलिए वो कुछ ही समय में उनके हृदय से सारे पाप की जो संभावनाएं हैं उसको वो बिल्कुल मूल से नष्ट कर देते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं। हमें उत्साहपूर्वक भक्ति में लगे रहना चाहिए, यही सबसे बड़ा पश्चाताप है कि और गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर रूप से हमने आज का प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बहुत सुंदर रूप से लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा, उसको समझने का प्रयास किया, और प्रभु जी ने हमको शुरुआत में भी मंगलाचरण के जो उसका महत्व है वो भी हमें समझाया, श्लोक की गरिमा को समझाया, और कई उदाहरणों के माध्यम से हमें समझने का प्रयास किया। तो हम बहुत आभारी हैं प्रभु जी के। थैंक यू प्रभु। और किसी के पास कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, उस समय हमारे पास में है। प्रभुपाद जी ने हमको बहुत अच्छा ये संस्कृति प्रदान किया है कि हर कक्षा के बाद कोई अगर जिज्ञासा हमें है, समझने में कोई कठिनाई हो रही है तो पूछ सकते हैं, अंधविश्वास नहीं करना है। Yes. Hare Krishna, Prabhuji, and Ratnams to all assembled devotees. Prabhuji, one aspect, one takeaway from this class is that only the Supreme Lord, who's Swarat, who's completely independent, he has the right to, remove the adverse karma that has been accumulated by us.
It is like a lamp. There's a cave, a dark cave, and the lamp is lit. So the whole cave gets illuminated. The cave cannot say for thousands of years have been dark, and just by lighting a lamp for 1 second, you are able to illuminate. And similarly, the President of India he has the right to commute a capital punishment to a life imprisonment. And you have seen in our own case, one of our devotees is actually a disciple of His Holiness Jayapatak Swami Guru Maharaj, where he was given a capital punishment in the jail of Malaysia, and through the guidance of some of the ISKCON devotees, he got in touch with Bhagavad Gita. He started reading Bhagavad Gita, and after some time, his capital punishment got commuted to life imprisonment. Then he was advancing further in devotional service, and then one fine morning, the court gave a verdict that he's already served a significant period of time in the jail, and he was released from the jail. Then he came to meet Guru Maharaj, and he got initiated, and he is doing prachar now. Yes. So we have seen in our own life how by having contact with the devotees, how having contact with the Granth, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, there is an internal transformation that happens. Even we don't sometimes realize that the transformation is happening. So this is actually the power. And as you rightly said, last month we didn't have a chance to assemble here, meet, basically even meeting devotees. Many of us don't understand so many things. But the very fact that we are with the devotees itself gives us a very positive effect for the whole week. Something keeps, the thought process keeps, churning into the mind. And when we make notes also, when we go through our notes, one word, as you rightly said, just one word, one line, one sentence, one sloka, one purport, it gives us so much of satisfaction. And all this material pursuits, whatever we do, we talk about planning. We do every year, every 5 years, we do long-term planning, every 3 years, mid-term planning, every year, a rolling plan. All these plans, unless until it is sanctioned by the supreme will of the Lord, nothing is going to change. Nothing is going to change. So this is my humble takeaway from your wonderful class. Thank you for inspiring us. And we are so happy that we are able to spend our time so effectively on a Friday morning, as Prabhuji mentioned. We have every opportunity to sleep in this cold winter. We can easily sleep till 10 o'clock. Many of our friends and all, they sleep till 11 o'clock. Some people get up at 12 o'clock on a Friday. But we are, by habit, we are able to get up early in the morning only for this Shravan, so that we can advance in Krishna consciousness. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. This Malaysia devotee, Prabhu, just I heard the Malaysia devotee, Guru Maharaj said, if you are ready to apply for the president, then I will give initiation, like that Maharaj told. Then with that condition only, he gave initiation before itself. Later on, then after that, he went and met Maharaj. Right. So this example given for the mercy of Guru, we are saying this. Thank you, Prabhu. Sorry. जैसे अभी हमने श्रवण किया, मुझे बताया कि कथा के माध्यम से कि एक बार एक व्यक्ति जिनको मलेशिया में उनको मृत्यु दंड दे दिया गया था, और तब वो भक्तों के संपर्क में, कोई जेल में गए थे प्रचार करने, उनको भगवत गीता मिली, भक्तों का संपर्क हुआ, और उसके बाद परम पूज्य जब स्वामी महाराज उनसे संपर्क हुआ, उनसे बड़े प्रेरित हुए और बोला कि मुझे दीक्षा चाहिए, मृत्यु के पहले दीक्षा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। महाराज ने बोला कि ठीक है, आप एक बार अपील करो प्रेसिडेंट से और मैं आपको दीक्षा दूंगा। दीक्षा दिया महाराज ने, और गुरु के आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपील किया, और उनके अच्छे आचरण को देखते हुए पिछले कई वर्षों से जेल में बड़े अच्छे आचरण थे उनके, सुबह उठना, जप करना, तो लगा कि इतना अच्छा, एकदम सुधर चुके हैं ये, और उनको मृत्यु दंड को बदल दिया गया और उनको जेल से रिहा कर दिया गया। तो कैसे देखिए भगवान और गुरु की कृपा कैसे होती है, ये समझना बड़ा अचिंत्य है, ये बहुत अचिंत्य है ये। तो मुझे बताया कि सब कुछ ये भगवान की, उससे आज में बहुत अच्छी बात सीखी हमने। और प्रभुजी ने और भी बताया कि हम सबके पास अवसर होता है कि हम लोग चाहे सोएं चाहे यहाँ पर जागे, जीव जागो, जिनको जगाया गया वो यहाँ पर आए हैं,
सो रहे 11-12 बजे सोते रहते हैं हर शुक्रवार के दिन। और कभी स्वयं देखिए सालमिया से हर सप्ताह में सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं अपना संग देने के लिए हम सबको regarding- देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है। प्रातः काल को उठ करके और सालमिया से आना ये आसान कार्य नहीं है, लेकिन प्रभु बता रहे हैं कि क्योंकि श्रवण के माध्यम से वो इतना उत्साह मिलता है और आप सबके संग से इतना उत्साह मिलता है कि पूरे सप्ताह हम लोग चार्ज रहते हैं। तो प्रभु जी हमको अपना संग देते हैं, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं प्रभु जी के। Regarding planning, and Prabhuji's word is final word. He is saying he is the authority for planning, 5-year plan, other plans. Hare Krishna, thank you. तो प्लानिंग के बारे में प्रभु जी कह रहे हैं कि वो अथॉरिटी है, क्योंकि वो प्रभु जी जिस कंपनी में कार्य करते हैं वो बहुत बड़ी पदवी पर है और वो पूरी कंपनी के लिए प्लान करते हैं और उनके प्लान को पूरी कंपनी मानती है, तो हमको मानना ही पड़ेगा। तो हम बहुत आभारी हैं, ऐसे भक्तों का संग हम सबको मिला। तो हम सब आज मिलकर प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत सुंदर रूप से